जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदा नंदन ब्रज जनरंजन। ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Nil Madhav, Radha Nil Madhav Radhe. Jai Radha Nil Madhav, Radha Nil Madhav Radhe. Jaya Gauranitai Jaya, Gauranitai Jaya, Gauranitai Jaya, Gauranitai Jai Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Sita Ram Lakshman Hanuman Jaya, Sita Ram Lakshman Hanuman. Jaya Sita Ram Lakshman Hanuman, Jaya Sita Ram Lakshman Hanuman. Jaya Lakshmi Narsimha, Jaya Lakshmi Narsimha, Lakshmi Narsimha, Jaya Lakshmi Narsimha. Jaya Lakshmi Narasimha, Jaya Lakshmi Narasimha, Lakshmi Narasimha, Jaya Lakshmi Narasimha. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jayam Vishnupad Paramhansa Parivrajakacarya Ashtotar Sat His Divine Grace Abhay Charanar Vinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Shri Shri Radha Nila Madhava Ki Jai, Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai, Shri Shri Sita Ram Lakshman Hanuman Ki Jai, Shri Lakshmi Narasimha Bhaktaraj Prahlad Maharaj Ki Jai, ISKCON Dharwad Yatra Ki Jai, Nitai Gaur Premanande, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai. Om Jnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Mukam Karoti Vachalam Pangum Langhayate Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Gurun Dinataranam. Vancha Kalpatarobhyascha
कृपा सिन्धोभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पिछली बार मुझे यहाँ आप सबके बीच आने का सौभाग्य मिला था राम नवमी के अवसर पर। इस वर्ष नहीं, इसके पहले वर्ष। और इस बार भगवान श्री राम के आविर्भाव के दिन पर न आने का सौभाग्य मिला, परंतु सीता देवी के आविर्भाव के दिवस पर आने का सौभाग्य मिला है। ये दैव से हो गया, ऐसे योजना से नहीं हो। तो कुछ भाव ऐसे विशेष सीताराम का लगता है आप सबके लिए। आज सुबह यहाँ नरसिंह होम, भूमि पूजन आदि अनुष्ठान संपन्न हुआ। आप में से अनेक भक्त आज सुबह भी आ पाए थे और सुबह के प्रवचन में हम ये चर्चा कर रहे थे कि भगवान के लिए एक मंदिर का निर्माण करना क्यों बहुत ही आवश्यक और लाभदायक है हमारे लिए। भगवान के लिए आवश्यक नहीं है, परंतु हमारे लिए आवश्यक है। और भूमि पूजन के बारे में भी संक्षेप में चर्चा की। अब क्योंकि भूमि पूजन हो रही है या हो गई आज संपन्न, और सीता देवी का जन्म भी भूमि से ही हुआ, तो भी ये एक बहुत उपयुक्त दिन है भूमि पूजन करने के लिए। सीता देवी के कई नाम हैं, उनमें से एक नाम है भूमिजा। भूमिजा, जा अर्थात जन्म लेने वाली, जिन्होंने जन्म लिया है, स्त्रीलिंग है। जा दीर्घ मात्रा है। तो जिन्होंने भूमि से जन्म लिया है वो है सीता। तो भूमिजा उनका नाम है। ऊपर उनका और एक नाम है सीता। सीता उनका नाम क्यों लगा? जब उनके पिता जनक महाराज यज्ञस्थली के जो प्रारंभिक कार्य होते हैं उनको कर रहे थे, जिसमें कि हल चलाना उस भूमि में भी एक आवश्यक अंग है, तो वहाँ जो हल रेखा है, जो खांचा हो गया हल चलाने से मिट्टी के अंदर, तो वहाँ भूमि के अंदर से
एक ये छोटी सी बच्ची दिखाई पड़ी महाराज जनक को, जो कि बहुत सुंदर थी। और महाराज जनक अति प्रसन्न हुए। वो भी ऐसे ही एक पुत्री या संतान के खोज में थे और स्वयं ऐसी एक सुंदर बच्ची उनके पास आ गई। आपको याद होगा कि श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव भी इसी प्रकार से हुआ। जब वृषभानु महाराज यमुना में स्नान करने के लिए गए थे तो यमुना नदी में 1000 पंखुड़ियों वाला कमल पुष्प था, जो कि बहुत तेजस्वी था। तो ऐसे पुष्प के ऊपर ये छोटी सी बच्ची थी और फिर वृषभानु महाराज चाहते थे कि उनका कोई संतान हो और वो राधा रानी आ गई उनके यहाँ। तो इसी प्रकार से भगवान की जो शक्तियाँ होती हैं, उनकी नित्य संगिनियाँ होती हैं, वो लगभग इस प्रकार से प्रकट होते हैं। क्योंकि भगवान के माता पिता कौन हो सकते हैं? भगवान ही सभी के माता पिता आदि हैं। उसी प्रकार से उनकी जो संगिनी हैं वो भी तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिनका जन्म किसी मनुष्यों के द्वारा हो सके। इसलिए अक्सर जैसे भगवान का आविर्भाव दिव्य होता है, तो उनकी जो शक्तियां हैं, उनकी संगिनियां हैं, उनका भी आविर्भाव दिव्य ही होता है। जैसे श्रीमती राधा रानी का था और सीता देवी का भी ऐसे था। और एक नाम सीता देवी का है जानकी, जनक महाराज की पुत्री। जनक महाराज ये सूर्यवंशी राजा थे। विदेह या मिथिला प्रांत के राजा थे। उनका एक नाम था विदेह। तो उस प्रांत के पहले राजा थे निमि। वैसे इक्ष्वाकु राजा के वंशज श्री राम भी थे, परंतु वो जो वंशावली है वो थोड़ी अलग हो गई आगे चल के। और निमि के वंशावली में सीता देवी का जन्म हुआ, जनक महाराज का जन्म हुआ। तो जनक महाराज का नाम जनक एक पदवी है वास्तव में, टाइटल। तो जितने भी अलग अलग अनेक जनक महाराज हुए उस वंशावली में, उनमें से जो सीता देवी के पिता थे जनक, उनका नाम था क्षीरध्वज। और उनके छोटे भाई थे जिनका नाम था कुशध्वज। तो उनकी दो पुत्रियां थीं। जनक महाराज की 2 पुत्रियों का नाम था सीता और उर्मिला। और उनके छोटे भाई कुशध्वज की 2 पुत्रियां थीं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। तो आगे चल के ये चारों जो पुत्रियां हैं, कन्याएं हैं, इनका विवाह महाराज दशरथ के 4 पुत्रों से हुआ। सीता देवी का विवाह श्री राम से हुआ। मांडवी देवी का विवाह भरत से हुआ। उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हुआ। और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से हुआ। तो खैर ये जनक महाराज और कुशध्वज, जनक महाराज क्षीरध्वज और उनके भाई कुशध्वज। तो जनक एक पदवी थी। तो ऐसे ये वंशावली चल रही थी महाराज निमि के समय से। इसलिए सीता का और एक नाम है जानकी, क्योंकि राज्य का नाम था मिथिला, इसलिए सीता का और एक नाम है मैथिली। आज भी उस प्रांत में मैथिली भाषा प्रचलित है। इस भाषा में लोग वहाँ बात करते हैं। और एक नाम उनका है वैदेही। वैदेही इसलिए नाम है क्योंकि राजा जनक का नाम है विदेह। विदेह के पुत्री हुई वैदेही। तो विदेह ऐसे नाम क्यों हुआ, ये एक अपने आप में लंबी कथा है, परंतु इस समय इतना कहना पर्याप्त होगा कि महाराज जनक आध्यात्मिक जीवन में बहुत आगे बढ़े हुए थे।
बहुत बड़े कर्मयोगी भी थे, भगवान के भक्त भी थे। और श्री कृष्ण भी भगवत गीता में जनक महाराज का उल्लेख करते हैं कि कैसे जब हम दुनिया में रहते हैं तो हमारे कर्मों से निरासक्त होकर हमें रहना चाहिए। तो महाराज जनक को विदेह इसलिए कहते हैं बिना देह, वी मतलब बिना, देह मतलब शरीर। तो बिना देह अर्थात तात्पर्य ये है बिना देहात्म बुद्धि, शारीरिक भावना के बिना, अर्थात जो शारीरिक भावना से परे हैं, जो आध्यात्मिक चेतना में स्थित हैं, ऐसे थे सीता देवी के पिता जनक महाराज शिरध्वज। इसलिए उनका नाम हुआ विदेह और सीता देवी का नाम उनकी पुत्री होने के कारण हुआ वैदेही। तो ऐसे जिस प्रकार से भगवान के भी अनेक नाम होते हैं, उनकी जो संगिनी होती हैं उनके भी अनेक नाम होते हैं। तो सीता देवी के कई नामों का उल्लेख हमने आज किया। सीता, दूसरा जानकी, भूमिजा, वैदेही, मैथिली, ये 5 बहुत ही प्रसिद्ध नाम हैं सीता देवी के। तो खैर ऐसे जन्म सीता देवी का बड़े अद्भुत रीति से हुआ। तो इस जन्म का वर्णन स्वयं सीता देवी करती हैं वाल्मीकि रामायण में। जब श्री राम सीता देवी और श्री लक्ष्मण के साथ वनवास में चले गए, वो चित्रकूट में आए। तो चित्रकूट में वहाँ अलग अलग स्थानों में जा रहे थे। तो अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी अनुसूया के आश्रम में भी वो आए। तो आप सब श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, आपने अत्रि मुनि और अनुसूया देवी का नाम अवश्य सुना होगा। किस संदर्भ में सुना है? कि वो त्रिमूर्ति के पालक थे, माता पिता थे। उन्होंने ऐसी प्रार्थना की कि जगदीश्वर उनके पुत्र के रूप में आ जाएं, परंतु स्पष्ट उन्होंने ये नहीं बताया कि ये जगदीश्वर हैं कौन। तो भगवान विष्णु, भगवान शिव और श्री ब्रह्मा जी तीनों ही अपने अंश रूप में उनके पुत्रों के रूप में प्रकट हुए। तो इसलिए अत्रि मुनि और अनुसूया देवी के 3 पुत्र हुए जो एक साथ प्रकट हुए। एक हैं दत्तात्रेय जो भगवान विष्णु के अंश अवतार माने जाते हैं, और दूसरे हैं सोम, चंद्र के अवतार माने जाते हैं, ब्रह्मा जी के अंश अवतार हैं। और तीसरे हैं दुर्वासा, जिनका नाम हमने अवश्य सबने सुना है। तो दुर्वासा मुनि शिव जी के अंश अवतार हैं। तो यही अत्रि मुनि और अनुसूया देवी वहाँ चित्रकूट में निवास करती थी। अब ये अनुसूया देवी कौन है? ये कर्दम मुनि और देवहूति माता की पुत्री हैं, अर्थात ये कपिल देव की बहन है। और कपिल देव ने भी उनको शिक्षा प्रदान की थी। अनुसूया देवी पतिव्रता स्त्रियों में से एक मानी जाती हैं। बहुत ही ज़्यादा पतिव्रता और बहुत ही बड़ी तपस्वी महिला थी वो। ऐसे बताया जाता है उनके बारे में कि एक बार जब अकाल पड़ गया था पृथ्वी में, गंगा जी का जल भी सूख गया था, तो अनुसूया देवी ने तपस्या करके गंगा जी को फिर से पृथ्वी पर लाके उसके जल से वो भर गई नदी। तो इस प्रकार से अनुसूया देवी अपनी तपस्या के लिए, अपनी शुद्धता के लिए, अपनी पतिव्रता आदि के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। और जब सीता देवी वहाँ पर आई तो अनुसूया देवी और सीता देवी का संवाद हुआ, और उधर अत्रि मुनि और भगवान राम और लक्ष्मण जी के साथ अलग से संवाद हुआ। तो अनुसूया देवी ने
सीता देवी को स्त्री धर्म रहस्य के ऊपर व्याख्या की कि कैसे स्त्री को रहना चाहिए, स्त्री धर्म क्या होता है। उधर अन्य विषयों पर अत्रि मुनि श्री राम और लक्ष्मण के साथ चर्चा कर रहे थे। उधर अनुसुईया देवी ने कई उपहार भी सीता देवी को दिए, एक रत्न दिया, एक फूलों की माला प्रदान की इत्यादि। तो जब ये संवाद चल रहा था तो अनुसुईया देवी जब बातचीत कर रही थी सीता देवी से, तो सीता देवी ने अपना परिचय दिया और उस समय उन्होंने बताया कि कैसे उनका जन्म हुआ। उन्होंने कहा कि महाराज जनक मिथिला राज जब यज्ञ संपन्न करने हेतु यज्ञ स्थली में हल चला रहे थे तो मैं वहाँ से नीचे से प्रकट हुई और उनको मेरे पिता महाराज जनक को मैं प्राप्त हो गई। इस प्रकार से मेरा जन्म हुआ। तो स्वयं सीता देवी अपने जन्म के बारे में वाल्मीकि जी के रामायण में बताती हैं। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि सीता देवी का जन्म बहुत ही दिव्य है और वो भूमि पुत्री भी हैं। सीता देवी के बारे में हम सुनते तो हैं अवश्य, जब रामलीला की बात आती है अक्सर हम हनुमान जी की बातें सुनते हैं, परंतु हो सकता है सीता देवी के बारे में इतना नहीं हम सुनते, इतनी लीलाओं की चर्चाएं नहीं करते जितना कि शायद करना चाहिए, क्योंकि संगिनी है सीता देवी श्री राम की, शक्ति हैं। श्री राम शक्तिमान हैं, सीता देवी शक्ति हैं। तो शक्ति और शक्तिमान सदैव एक साथ रहते हैं, कभी उनको अलग नहीं किया जा सकता। और शक्ति पहले, शक्तिमान बाद में, इसलिए सीता राम। उसी प्रकार से लक्ष्मी संगिनी हैं, शक्ति हैं, भगवान नारायण शक्तिमान हैं, लक्ष्मी नारायण। उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी परम शक्ति हैं और श्री कृष्ण परम शक्तिमान हैं। तो राधा कृष्ण, इस प्रकार से ये जो युगल जोड़ी है शक्ति, परम शक्ति और परम शक्तिमान के, ये कभी भी अलग नहीं हो सकते। जब भगवान प्रकट होते हैं यहाँ पर तो अपने शक्ति के साथ भी प्रकट होते हैं, उनकी संगनी भी प्रकट होती हैं। तो उसी तरह जैसे श्रीमती राधा रानी का हुआ था, तो उधर ऐसे प्रतीत होता है कि मानो सीता देवी पहली बार श्री राम से मिली थी यहाँ प्रकट लीला में, परंतु सीता राम की जोड़ी तो नित्य रूप से साकेत अयोध्या में है, विद्यमान है। अनंत अनादि काल से सीता और राम की जोड़ी है, कभी इनकी शुरुआत नहीं हुई, काल के परे है और अनंत काल तक ये साथ में रहेंगे। फिर भी जब भगवान और उनकी संगिनी, उनकी शक्ति सीता देवी प्रकट होती हैं यहाँ पर, तो ऐसे प्रतीत होता है कि मानो कभी वो पहली बार मिले। जैसे श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी भी एक बार कभी मिल जाते हैं रावल में, वृषभानु महाराज के घर में जब राधा रानी का प्राकट्य होता है। तो उसी प्रकार से सीता देवी ने भी ठान लिया था मुझे श्री राम से ही विवाह करना है। तो विवाह के लिए अब सीता देवी के लिए योग्य वर कैसे ढूंढा जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न महाराज जनक के मन में हुआ। अब शिवजी ने महाराज जनक के परंपरा में उनका धनुष भेंट में दिया था। उस धनुष का नाम था पिनाकी और शिवजी का धनुष होने के कारण बहुत बड़ा था, बहुत भारी था और उसे उठाना प्राय असंभव था शक्तिशाली लोगों के लिए भी। ऐसे कहा गया है, शायद वाल्मीकि रामायण में तो नहीं है, लेकिन एक जगह हमने सुना है कि एक बार परशुराम जी जब वहाँ आए थे, वो भी भगवान के शक्ति आवेश अवतार हैं, उन्होंने देखा कि ये बच्ची सीता देवी वो इस पिनाकी धनुष से खेल रही है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये इतना भारी धनुष
जो बड़े बड़े राजा भी नहीं उठा सकते हैं, ये बच्ची उसको लेकर खेल रही है। तो फिर इसीलिए कुशध्वज या शिरध्वज महाराज जनक, उन्होंने तय कर लिया कि जब सीता देवी की आयु हो गई विवाह के लिए, कि एक स्वयंवर का आयोजन किया जाए और ऐसे राजकुमार ही सीता देवी के लिए योग्य वर हो जाएंगे जो कि शिव जी के इस धनुष पिनाकी को उठा सकेंगे। तो बहुत सारे स्वयंवर का आयोजन हुआ। उधर भगवान की योजना से ही विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण को ले आए थे अयोध्या से, क्योंकि विश्वामित्र मुनि के आश्रम में कई राक्षस आदि उनको हैरान कर रहे थे। जो भी वो यज्ञ आदि धार्मिक क्रियाएं कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, उनको भंग करने के लिए ये राक्षस बार बार आते थे, उस स्थान को प्रदूषित करते थे। विश्वामित्र मुनि अपने योग बल पे, अपनी तपस्या के बल पे इन राक्षसों का वध आसानी से करने के लिए सक्षम थे। फिर भी अब वो क्षत्रिय नहीं थे, अब वो ब्राह्मण बन गए थे अपनी तपस्या के द्वारा। राज कारोबार तो उन्होंने बहुत पहले ही से ही त्याग दिया था, इसलिए उन्होंने सोचा कि ये क्षत्रिय का कार्य है, और यदि मैंने श्री राम और श्री लक्ष्मण को बुलाया तो फिर इनकी ख्याति बढ़ेगी, विश्व भर में ये प्रसिद्ध हो जाएंगे कि उन्होंने ऐसे बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है। तो जब वो आए दशरथ महाराज के सामने, तो दशरथ महाराज तो बौखला गए। उनको तो इच्छा नहीं थी। वो कहने लगे, मेरे पुत्र दोनों 16 वर्ष के ही मात्र हैं, बच्चे हैं। मैं मेरी सेना भेजता हूँ, मैं स्वयं आपके साथ आता हूँ राक्षसों का वध करने के लिए। परंतु विश्वामित्र मुनि ने एक नहीं मानी। अंततः वशिष्ठ मुनि के कहने पर राजा दशरथ मान गए। तो विश्वामित्र मुनि, जैसे मैंने पहले कहा, वो इन राक्षसों को आसानी से मार सकते थे, परंतु न केवल राम और लक्ष्मण की ख्याति बढ़ाने के लिए, परंतु और एक गुह्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो श्री राम और लक्ष्मण को वहाँ ले आए। और वो क्या उद्देश्य था? श्री राम का विवाह होना था सीता देवी से। तो जब वहाँ पर श्री राम ने लक्ष्मण के साथ में इन राक्षसों का वध किया, तो फिर विश्वामित्र ने कहा कि अरे, खबर आई है कि राजा जनक की पुत्री सीता देवी का स्वयंवर का आयोजन हो रहा है मिथिला में, तो आइए हम सब चलते हैं। तो श्री राम और लक्ष्मण वहाँ चले, और उस समय स्वयंवर वहाँ पे हो रहा था। तो बहुत सारे बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धा और राजा और राजकुमार आए, परंतु कोई भी उस धनुष को हिला भी नहीं पाया। उठाने की बात तो दूर है। वैसे महाराज जनक ने शर्त रखा था कि जो भी योग्य वर होगा मेरी पुत्री के लिए, उसे न केवल बीच में पकड़ के इस पिनाकी धनुष को उठाना चाहिए, इस प्रत्यंच को भी जोड़ना चाहिए। जो तार होता है धनुष का, उसको भी जोड़ लेना चाहिए। तो जब ये सारे राजा और राजकुमार हिला भी नहीं सकते थे उस धनुष को, तो उसको उठाना और उसका प्रत्यंच जोड़ना, फिर उसकी बात तो दूर रही। तो सब लोग आए, उन्होंने प्रयत्न किया और निराश होकर वो सब पीछे चले गए। फिर श्री राम आए और उन्होंने बड़े आसानी से एक हाथ से उसको उठाया और प्रत्यंच भी जोड़ दिया, तार जोड़ दिया। और उस समय जब उन्होंने किया तो ऐसे भयंकर आवाज़ आया वहाँ पे, ऐसे माने कि ब्रह्मांड अभी टूट गया है, ब्रह्मांड का विस्फोट हो गया है, और सारे जितने भी लोग थे वो सब गिर पड़े। केवल थोड़े बहुत ऋषि मुनि थे, महाराज जनक थे, श्री राम आदि थे, बस वही खड़े रह गए, बाकी सब इस ध्वनि के कारण गिर पड़े। और तब सीता देवी ने जाके वरमाला पहनाई श्री राम के गले में, और फिर महाराज दशरथ को निमंत्रण दिया गया अयोध्या में। वो फिर आए और बड़े धूमधाम से उनका विवाह हो गया, और तीनों और उनकी जो बहनें थीं उनका भी विवाह श्री राम के भाइयों के साथ हो गया। तो इस प्रकार से सीता देवी पुनः
श्री राम से मिल गई यहाँ पर प्रकट लीला में। अप्रकट लीला में, आध्यात्मिक जगत में, साकेत या अयोध्या में सीता राम तो है ही साथ में। फिर आगे चल के जब वनवास का समय आया तो सीता देवी एक पतिव्रता स्त्री होने के कारण अपने पति के साथ गईं। और सीता देवी की जीवनी से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे कष्ट में भी साथ देना चाहिए पत्नी को, और पति को भी साथ देना चाहिए। ऐसे नहीं कि पत्नी साथ देती रहे पति साथ नहीं दे, ऐसा नहीं। दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, विशेष करके जब परिस्थिति बहुत विकट हो जाती है, कठिन हो जाती है। सीता देवी भी उनके साथ में गईं। यद्यपि वो तो राजकुमारी थी, राजमहल के सुविधाओं से आराम की आदी थी, फिर भी वो निकल पड़ी, बिल्कुल हिचकिचाई नहीं, अपनी इच्छा से वो आगे आई। यद्यपि श्री राम ने कहा कि तुम रह जाओ यहाँ पे, परंतु सीता ने कहा नहीं, मैं आपके साथ में आऊँगी। और फिर लक्ष्मण भी साथ में आए, क्योंकि उनको श्री राम की सेवा करनी थी। इस प्रकार से ये निकल पड़े। आगे चल के चित्रकूट में आए, चित्रकूट में अनेक वर्षों तक रहे। पंचवटी आए, वहाँ पे शूर्पणखा की लीला हो गई, शूर्पणखा को घायल करने की लीला हुई। फिर आगे चल के वहीं पास में जब श्री राम को, रावण को पता चला कि ऐसे शूर्पणखा के साथ हुआ है, तो रावण ने ठान लिया कि सीता देवी का अपहरण करना चाहिए। सीता देवी का अपहरण हो गया। सीता देवी पहुंच गई अशोक वाटिका में, लंका में, परंतु रावण कुछ कर नहीं पाए सीता देवी का, क्योंकि रावण को बहुत सारे श्राप पहले से मिले थे। बहुत सारे महिलाओं ने श्राप दिया था, क्योंकि श्री रावण ने उनके ऊपर ज़बरदस्ती की थी। और कितने सारे महिलाओं का श्राप उसके ऊपर था कि एक बार यदि तुमने ऐसे जोर ज़बरदस्ती की किसी भी महिला के साथ में, तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु होगी। तो रावण ये अच्छी तरह से जानता था, इसलिए सीता देवी को रावण ने समय दिया 1 वर्ष का, कि 1 वर्ष तक तुम यदि स्वेच्छा से मेरी बात मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो तुम्हारी हत्या मैं कर दूंगा 1 साल के बाद। और जब केवल 2 महीने बचे थे उस 1 साल के लिए, तब श्री राम वहाँ पहुँचे और सीता देवी को वापस ले आए। तो ये श्राप की बात की हमने कि अनेक महिलाओं ने श्राप दिया था। तो ऐसे भी पुराणों में बताया गया है कि वेदवती नाम की एक साध्वी थी जो तपस्या कर में स्थित थी। तो रावण जब अपने आकाश पथ से अपने वाहन में जा रहा था, उसने वेदवती को देखा। ये वेदवती बहुत सुंदर थी। तो रावण ने आके ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया, परंतु वेदवती ने अपनी योग शक्ति से अग्नि उत्पन्न की और अग्नि में प्रविष्ट हो गई। और इसके पहले उन्होंने श्राप दिया कि मैं ही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनूंगी जब मैं अगला जन्म लूंगी। और वही वेदवती फिर सीता के रूप में प्रकट हुई। तो ऐसे भी एक लीला है। तो खैर, अभी अपहरण की लीला ये भक्तों के लिए बहुत ही दुखदायक लीला है कि कैसे सीता देवी जो शक्ति है भगवान की, उनका अपहरण कैसे हुआ। जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे तो दक्षिण मथुरा में पहुँचे। दक्षिण मथुरा अर्थात तमिलनाडु में जो शहर आज मदुरई के नाम से जाना जाता है, उसे दक्षिण मथुरा कहते हैं शास्त्रों में। मूल मथुरा वृंदावन के पास है और ये है दक्षिण मथुरा। तो वहाँ पर एक भक्त से, श्री राम भक्त से मिले चैतन्य महाप्रभु। बहुत ही विद्वान थे, बहुत ही सौम्य थे, सद्गुणों से संपन्न थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि वो भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में निमंत्रण किया इस ब्राह्मण ने।
जिनका नाम था रामदास विप्र। तो चैतन्य महाप्रभु उनके घर में आए और ये जो रामदास विप्र हैं अपने राम लीला के स्मरण आदि में इतने मग्न हो गए थे कि उनको पता ही नहीं चला कि मुझे अभी भोजन पकाना है, अभी मेरे अतिथि आने वाले हैं। जब चैतन्य महाप्रभु उनके घर में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि अरे कुछ भोजन तैयारी नहीं हुआ है। तो उन्होंने पूछा, अरे रामदास, अरे विप्र, क्या भोजन की तैयारी नहीं की? तो उस ब्राह्मण ने उत्तर दिया, अरे हम तो वनवास में रहते हैं, हम तो वन के अंदर रहते हैं। अभी जब लक्ष्मण जाएंगे, जब वो जाके कुछ कंद मूल फल आदि लेके आएंगे, सब्जी कुछ लेकर आएंगे, तब सीता देवी पकाएंगी, तब जाके हम कुछ भोजन ले पाएंगे। तो वह ऐसे भाव विभोर होकर राम लीला में प्रविष्ट हो गए थे, इसलिए बाह्य चेतना उनकी थी नहीं। वो आंतरिक अपनी कृष्ण राम लीला में बहुत ही मग्न हो गए थे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने जब इनका भाव देखा तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। उस समय रामदास विप्र अपनी बाह्य चेतना में आ गए और वो देखने लगे कि अरे रे रे, मैंने तो चैतन्य महाप्रभु को यहाँ बुलाया है प्रसाद के लिए और मैंने कुछ भी तैयारी नहीं किया। तो जल्दी से उन्होंने भोजन बना लिया और महाप्रभु को अर्पण किया। तो उधर जब महाप्रभु ने प्रसाद स्वीकार कर लिया तो रामदास विप्र ने प्रसाद नहीं लिया। तो महाप्रभु ने पूछा कि अरे ब्राह्मण, आप क्यों नहीं ले रहे हो प्रसाद? तो उन्होंने कहा कि मैं इतना दुखी हूँ कि प्रसाद बिल्कुल नहीं ले सकता। ऐसे होता है ना कभी कभी भौतिक जीवन में भी, जब व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है तो खा नहीं सकता है। जब व्यक्ति बहुत खुश होता है उस समय भी नहीं खा सकता। तो लेकिन आध्यात्मिक जीवन में भी जो सबसे ऊंचा आनंद है, विरह का आनंद, दुख भी है, ये भी आनंद ही है। तो उन्होंने कहा कि मैं ये सोच रहा हूँ कि भगवान श्री राम की जो शक्ति, उनकी पत्नी है, उनकी संगिनी है सीता देवी, उनको उठाकर उनका अपहरण करके ले गया ये दुष्ट रावण। ऐसे कैसे हो गया ये? और इस विषय में सोच के मुझे इतना दुख होता है कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। मुझे जीने की भी इच्छा नहीं है, इतना दुख हो रहा है मुझे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको सांत्वना दी और बताया कि देखो हे रामदास, सीता देवी कोई साधारण महिला नहीं है जिसका स्पर्श, अपहरण की बात तो दूर रही, जिसका स्पर्श रावण जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति कर सके। सीता देवी तो दिव्य है, सच्चिदानंद है, इसलिए कोई दुष्ट व्यक्ति स्पर्श करने की बात दूर है, अपहरण करने की बात दूर है, उनको देखने के लिए भी योग्य नहीं है। तो सीता देवी का स्पर्श रावण ने नहीं किया। एक छाया सीता या माया सीता का एक रूप था जो कि प्रकट हुई और रावण ने इस माया सीता का अपहरण किया, मूल सीता देवी का अपहरण नहीं किया। ये तो संभव ही नहीं है। और ये बहुत महत्वपूर्ण एक तत्व की बात है कि भगवान और भगवान की शक्ति, ये दोनों दिव्य हैं, चिन्मय हैं, आध्यात्मिक हैं। इसलिए केवल योग्य व्यक्ति ही, जिनकी दिव्य दृष्टि है या जिनको भगवान की कृपा से दिव्य दृष्टि प्रदान की जाती है, केवल यही लोग भगवान के और उनके शक्ति के रूपों को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, साक्षात दर्शन कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा रामदास विप्र से कि ऐसे संभव ही नहीं है कि सीता देवी का अपहरण रावण ने किया। रावण ने एक नकली सीता, माया सीता का अपहरण किया, असली सीता तो नहीं रही वहाँ पर। तो ऐसे ये बातें चैतन्य महाप्रभु के मुखारविंद से सुनकर वो बहुत शांत हो गए और फिर उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया
और श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं इस प्रकार से रामदास विप्र की जान बच गई, अन्यथा उपवास कर करके वो अपने प्राण को त्याग देते। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु मदुरई से या दक्षिण मथुरा से और दक्षिण की ओर चल पड़े। चलते चलते वो आ गए रामेश्वरम में। वहाँ धनुष तीर्थ है इत्यादि, राम सेतु। फिर वहाँ रामेश्वरम में जब वो ब्राह्मणों के संग में आए तो उनको कूर्म पुराण इसके थोड़े पन्ने मिले। और कूर्म पुराण के श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि गिने चुने ही बस 2 ही अध्याय बचे हैं, बाकी और कितने कहाँ ये अध्याय हैं ये पता नहीं, लुप्त हो गए हैं। जैसे कि ब्रह्म संहिता का केवल 1 अध्याय अभी मिला हुआ है, प्रकट है, बाकी अनेक जो अध्याय हैं वो अभी नहीं हैं, अब प्रकट है, नहीं मिल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु को भी ब्रह्म संहिता का 5वां अध्याय मिला था। ठीक उसी प्रकार से महाप्रभु को ये कूर्म पुराण के 2 अध्याय मिले। और इस अध्याय में ये लिखा था, बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखी थी। उनमें ये लिखा था कि जो सीता माता है, जो कि सारे जगत की माता है और श्री राम की अर्धांगिनी है, उनकी शक्ति है, जगत शिरोमणि, तो वो आई है। वो जब आई, रावण उनके सामने आया तो उस समय वो अग्नि देवी के शरण में गई और अग्नि देवी ने आके उनके शरीर के ऊपर एक आवरण लगाया और एक माया सीता या छाया सीता को प्रकट किया अग्निदेव ने। और जिस सीता का स्पर्श रावण ने किया वो ये छाया सीता या माया सीता थी। रावण ने सोचा कि मैं असली सीता को ले जा रहा हूँ, उन्हें फर्क नहीं पता चला। और अग्निदेव ने क्या किया, अग्निदेव ने जो असली सीता हैं, मूल सीता, उनको पार्वती देवी या दुर्गा देवी के स्थान में जाके रखा कि आप यहाँ रहिए, सुरक्षित रहेंगी आप यहाँ, चिंता मत कीजिए। तो असली सीता वहाँ पर रह गई और माया सीता वहाँ चली गई लंका में। जब श्री रामचंद्र ने रावण का वध किया और उनका विजय हुआ तो सीता देवी को साथ में लेकर आए। उधर अग्नि परीक्षा हुई क्योंकि श्री राम सारी दुनिया को साबित करना चाहते थे कि सीता देवी बहुत पवित्र है और रावण का स्पर्श नहीं हुआ है वास्तव में। तो उधर अग्नि में प्रवेश करने लगी सीता देवी, सबके सामने सारी वानर सेना, देवलोक के निवासी सब वहाँ पर उपस्थित थे। तो सीता देवी अर्थात माया सीता प्रविष्ट हुई अग्नि में और अग्नि देवी असली सीता को अग्नि से बाहर लेकर आए और श्री रामचंद्र के सामने रख दिया। और इस प्रकार से सीता देवी और श्री राम फिर से साथ में आ गए। तो इस कथा को सुनकर चैतन्य महाप्रभु अति प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा अरे ये बहुत अच्छी बात है, यही प्रमाण की आवश्यकता थी। तो मैं जाकर ये रामदास विप्र को दक्षिण मथुरा में ये दिखाऊंगा। परंतु वो जो पन्ने थे बहुत पुराने थे। जैसा कि आप जानते हैं उस काल में मुद्रणालय नहीं थे। हम तो आजकल आसानी से पुस्तकों को छाप सकते हैं, परंतु उस समय पुस्तकों की लिपि बनाई प्रतियां बनाई जाती थी लिख के। परंतु क्योंकि महाप्रभु चाहते थे कि ये मूल प्रतियां उनके साथ में आएं, तो और ब्राह्मणों को उन्होंने सेवा में लगाया जिन्होंने इसकी लिपियां बनाई और वो लिपियां रामेश्वर में रह गईं। और उन ब्राह्मणों के अनुमति से उन्होंने कूर्म पुराण के ये 2 जो मूल अध्याय थे, लिपि प्रतियां थी, उनको ले गए। और जब वो वापस लौटते वक्त मदुरई में आए तो रामदास विप्र से मिले और उन्होंने उनको ये प्रतियां दी कि देखो ऐसे है। तो रामदास विप्र को बड़ा आनंद आया कि चलो अभी प्रमाण भी मिल गया। वो बड़े विद्वान थे, वैसे ही बड़े भक्त भी थे श्री राम के,
तो वो बहुत ही उनका हृदय शांत हो गया और फिर अच्छी तरह से पुनः उन्होंने अपनी सेवा भगवान की प्रारंभ की। वैसे कर ही रहे थे, परंतु अभी बड़े आनंद के भाव से किया। अब उनके हृदय में बिल्कुल दुख नहीं रहा कि रावण ने सीता का स्पर्श किया है। तो खैर ऐसी बहुत सा ये लीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 9वें अध्याय में बतलाते हैं। तो सीता देवी बाद में आई और फिर बाद में लव और कुश का जन्म हुआ वाल्मीकि मुनि के आश्रम में। और पुनः जब वाल्मीकि मुनि के कहने पर श्री राम तैयार हुए सीता देवी को वापस स्वीकार करने के लिए, तो वहाँ पर सबके सामने सीता देवी ने प्रार्थना की कि यदि मैंने श्री राम के अतिरिक्त और किसी को अपने मन में नहीं लिया हो तो भूमि देवी कृपया मेरे सामने आ जाएं और मुझे स्वीकार कर लें। और ठीक उसी समय पृथ्वी हट गई, जमीन में छेद हुआ, अंदर से भूमि देवी प्रकट हुई और उन्होंने एक सिंहासन लेके वो बाहर आई और सिंहासन पर सीता देवी को बिठाया और वह सिंहासन भूमि देवी सहित पृथ्वी के अंदर फिर से चला गया। इस प्रकार से सीता देवी का तिरुभाव हुआ। तो सीता देवी का आविर्भाव भूमि देवी में से हुआ था, उनका तिरुभाव भी भूमि देवी में ही हुआ। इसलिए उनका नाम है भूमिजा, जैसे हम जानते हैं, और आविर्भाव भी ऐसे हुआ। इस प्रकार से सीता देवी के अनगिनत दिव्य गुणों का प्रमाण हम इन विविध लीलाओं से जान सकते हैं। श्रीमती सीता देवी की जय। श्री श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। सीता नवमी की जय। तो यहाँ पर इसी दिन पर भूमि पूजा हुई है और पुनः श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमलों में हम प्रार्थना करते हैं, श्रीमती सीता देवी के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि वह ऐसे आशीर्वाद और कृपा प्रदान करे कि यहाँ धारवाड़ में इसी स्थान में सुंदर मंदिर का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र संपन्न हो जाए और आप सब और तीव्रता से यहाँ पर भक्ति में लग जाएं। एकजुट होकर एक बड़ी एकता की भावना से, प्रेम और विश्वास की भावना से साथ में मिलजुल कर कीजिए। सदा योगी प्रभु और उनके साथ आप सब मिलके एक साथ, आप में कोई ब्रह्मचारी भक्त हैं, कोई गृहस्थ भक्त हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता। भगवान की सेवा के लिए ब्रह्मचारी हों, गृहस्थ हों, कोई फर्क नहीं है। भगवान हमारे भक्ति भाव को देखते हैं। तो दोनों ब्रह्मचारी भक्त हों, गृहस्थ भक्त हों, आप सब लोग मिलजुल के आप यहाँ पे अच्छी तरह से मंदिर का निर्माण करवाइए और खूब अच्छी तरह से अपनी साधना कीजिए और प्रचार भी कृष्ण भक्ति का कीजिए। चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन को इस भाग में फैलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। वर्षा के कारण आज यहाँ कार्यक्रम को प्रारंभ होने में विलंब हुआ, देर हो गई, परंतु फिर भी आप इतनी संख्या में यहाँ पर आए हैं। आप सबका हार्दिक धन्यवाद और आभार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।